اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ وہ محبت کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یہی تو تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ کھانا کھلایا کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرو، مل جل کر زندگی گزارا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ، اور رات کے اس وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے رو رو کر دعائیں کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ جب دنیا کے سارے انسان، سارے غافل انسان سوئے ہوئے ہوں، اس وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ نِعْمٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اگر تم یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ کام کرتا کون ہے؟ یہ وہی شخص کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں موجود ہوگا، اس کے دل میں تقوی رہے گا، اس کے دل میں خدا کا خوف رہے گا، وہی شخص یہ کام کرے گا اور وہ متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ یہ متقی حضرات ہیں، متقی لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو رات کے آخر پہر میں، رات کے آخر حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ انہی لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلے بستروں سے الگ رہتے ہیں، ان کے پہلے بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں رزق دیا ہے، جو انہیں مال اور دھن دولت دیا ہے، جو دولت سے سرفراز کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حق راستے پر خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیزیں چھپا کر رکھی ہیں، یہ ان چیزوں کا بدلہ ہوگا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان چیزوں کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا، اگر ذرہ برابر نیکی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اگر ذرہ برابر گناہ کرے گا تو اس کا بھی روزہ قیامت کے دن اس کو بدلہ مل جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں بتلائی ہیں کہ جو انسان اس 4 چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی چیز آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، دوسری چیز ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ کھانا کھلانا، تیسری چیز ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنا، اور چوتھی چیز رات کے آخر پہر میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گر گڑا کر دعائیں کرنا، اپنے گناہوں کا معافی مانگنا۔ یہ اگر 4 کام انسان کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی بوجھ کو ختم کرنے کے لیے اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوگوں تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے، لوگوں تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم کامل مومن نہ بنو گے، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بنو گے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کر دو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، یقیناً تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں،
दुनिया की बहुत सारे मज़ाहिब इस दुनिया के अंदर है, लेकिन किसी भी मजहब में आपको सलाम जैसा कलिमात मौजूद नहीं मिलेंगी। ये वो इस्लाम मजहब है, ये पसंदीदा धर्म है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी है कि एक दूसरे को सलाम करो, ऑटोमेटिक तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगा। बहुत सारे मजहब हैं, कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, कोई टाटा बाय बाय कह रहा है, कोई नमस्कार कह रहा है। क्या ऐसी चीजों से, ऐसे अल्फाज से मोहब्बत पैदा हो सकता है? यह हरगिज नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाया कि लोगों एक दूसरे को सलाम क्या करो। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वला तदाबरू, लोगों एक दूसरे से कत ताल्लुक ना तोड़ो, एक दूसरे से ताल्लुकात को ना तोड़ो, एक दूसरे को बाइकाट करके ना रखो, एक दूसरे से बातचीत करना बंद ना करो। अगर आपको किसी भी भाई की जानिब से, किसी भी मुसलमान की जानिब से अगर बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा है, बहुत से ज्यादा तकलीफ पहुंची है, बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पहुंची है, बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द पहुंचा है, तो 3 दिन तक कत ताल्लुक जायज है। 3 दिन से ज्यादा कत ताल्लुक शरीयत के अंदर जायज नहीं है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावे हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया ला यहिल्लु लिर्रजुली अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास लयालिन, कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है, किसी शख्स के लिए जायज नहीं है, ये हलाल नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा कते ताल्लुक इख्तियार करें, 3 दिन से ज्यादा ताल्लुकात को इस तरह मुनक़ता कर ले कि यल्तकियान, कि वो दोनों जब आपस में एक दूसरे से मिले फयुरिदु हादा व युरिदु हादा, तो उनमें से एक शख्स इधर मुंह फिर ले और एक शख्स इधर मुंह फिर ले। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि उन दोनों में सबसे बेहतरीन शख्स वो है, उन दोनों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो सबसे पहले सलाम कहेगा। मेरे भाइयों, कत ताल्लुक की बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर 2 भाइयों के दरमियान कत ताल्लुक की वजह से बातचीत बंद है, एक दूसरे से दुश्मनी है, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, बातचीत करना बंद कर दिया है, तो कते ताल्लुक होने के साथ साथ अगर वो चाहे कितना ही नेक अमल कर ले, कितना ही तहज्जुद गुजार बन जाए, कितना ही सदका खैरत करने वाला बन जाए, कितना ही अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डाले, लेकिन कते ताल्लुक है तो उसके नेक अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। उसकी नेकियों को रोज़े क़यामत के दिन उसके मुंह में मार दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो एक दूसरे से कते ताल्लुक करके रखा है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे का अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हफ्ते में 2 दिन पेश किए जाते हैं। पीर और जुमेरात के दिन बंदे का अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पेश किया जाता है और अल्लाह ताला हर उस शख्स को माफ कर देता है, हर उस शख्स को माफ कर दिया जाता है जो हकीकत में पक्के सच्चे मोमिन होता है। और उस शख्स के बारे में जिसके और उसके भाई के दरमियान कते ताल्लुकी है, दुश्मनी है, बातचीत बंद है, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, उतरुकू हादैन हत्ता यफिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उन दोनों को मोहलत दे दो, उन दोनों को मोहलत दे दो यहाँ तक कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से सुलह कर ले, एक दूसरे से मिलने। तो मेरे भाइयों, इन बातों से मालूम यह होता है, इन हदीसों से और कुरान की आयतों से मालूम यह हुआ कि कतो ताल्लुक है तो उसके नेक अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो हमें हर इंसान से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से कते ताल्लुक नहीं करना चाहिए। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वाला यबीउ बादुकुम अला बैइ बाद, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के सौदे पर सौदा ना करे। अगर एक मुसलमान किसी चीज को खरीद रहा है, 20 रुपये से खरीद रहा है, कीमत तय हो चुकी है, लेकिन वो पैसा उसको अभी नहीं दिया, लेकिन एक दूसरे मुसलमान आकर उसी चीज को 100 रुपये में खरीद रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये चीज जायज नहीं है, हराम है।
اور इसी बिना पर मुआशरे में नफरत फैल जाती है, खराबियां फैलती हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों एक दूसरे के सौदे पर सौदा ना करो। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वकुनु इबादल्लाहि इख्वाना, कि अल्लाह के बंदे भाई भाई मिलकर जिंदगी गुजारा करो। लफ्ज भाई के अंदर इंतहाई जाम नसीहत है कि लफ्ज भाई हमें मोहब्बत, उल्फत और मोहब्बत के ऊपर उभरता है, लेकिन हम ये मुसलमान हैं कि एक भाई को दूसरे भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात को वजाहत करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मुस्लिम का जसद वाहिद, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कि जिस्म के मानंद है। अगर हमारे जिस्म में किसी भी जगह कोई चोट लग जाए, कोई तकलीफ पहुंचे, तो सारा बदन उस तकलीफ को महसूस करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसी तरह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक जिस्म के मानंद है। जब ये भाई को चोट लग जाए तो दूसरे मुसलमान भाई ये कहते हुए उसकी तकलीफ को महसूस करे कि चोट लगे तुझको लेकिन दर्द मुझे होता है, ये कहकर दर्द को, तकलीफ को महसूस करना चाहिए। लेकिन एक मुसलमान को कोई सता रहे हैं, दूसरे मुसलमान देखकर हंस रहा है, एक मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, दूसरे मुसलमान मजाक उड़ा रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो ही कि उसके जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ला यल्ज़िमुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर जुल्म ना करे। यानी जुल्म ये भी बदतरीन गुनाह है और ये एक मोहलिक मर्ज है, क्योंकि कोई इंसान अगर किसी इंसान के ऊपर जुल्म करता है तो जुल्म करने वाले के खिलाफ, यानी मजलूम के दिल में जालिम के खिलाफ नफरत, अदावत पैदा हो जाती हैं और ये बहुत ही खतरनाक गुनाह है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आई मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया और तुम पर भी जुल्म को हराम कर दिया, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी मुस्लिम के हदीस के अंदर फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिमी हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम यफ़्लितहु, कि अल्लाह तबारक व तआला जालिम को ढील देता है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला जालिम को पकड़ लेता है तो उसकी पकड़ से वो बचकर निकल नहीं सकता। बुखारी शरीफ की एक प्यारी सी रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई मुसलमान भाई किसी मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म ना करे, उसकी बेइज्जती ना करे या फिर उसके ऊपर कुछ भी ज्यादती ना करे। अगर कोई इंसान किसी इंसान के ऊपर जुल्म और ज्यादती की तो उसे चाहिए कि आज ही उससे माफी मांग ले, इससे पहले कि उसके पास ना दिनहर होंगे, ना दिनार और दिरहम होंगे, ना कोई नेकियां होंगी और ना ही नेक काम होंगे। अगर कोई इंसान किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती करे तो उसके पास अगर नेकियां होगी तो उसी जुल्म के मुताबिक उसकी नेकियों में कमी कर दी जाएगी और उस शख्स के गुनाहों को, यानी जिसके ऊपर वो जुल्म किया है, उसके गुनाहों को लाकर इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। इसी जुल्म को मुखातिब करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से सवाल किया अतदर्रून मल मुफलिस, आए लोगों तुम में से कौन जानते हो, आए लोगों तुम में से कौन जानते हो, ये बताओ कि तुम में से मुफलिस कौन है। लोगों ने जवाब दिया क़ालू, लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से मुफलिस वो शख्स है जिसके पास कोई सामान नहीं है, कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर वो शख्स मुफलिस है, मेरी उम्मत में वो शख्स मुफलिस है
जो रोज क़यामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, लेकिन वो सारी चीज उसके कोई काम के नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़द शतम हादा, उसने किसी को बुरा भला कहा होगा, वक़दफ़ हादा, उसने किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाई होगी, वाकला माल हादा, उसने किसी का माल छीना होगा, वसफ़का दम हादा, उसने किसी का नाहक खून बहाया होगा, वज़रब हादा, उसने किसी को अपने हाथ से मारा पीटा होगा, फ़युता हादा मिन हसनतिही व हादा मिन हसनतिही, तो उस शख्स की नेकियों को उन्हें दे दी जाएंगी जिसके ऊपर वो जुल्म किया, जिसका माल छीना, जिसको नाजायज कत्ल किया, जिसको मारा पीटा, जिसको बुरा भला कहा। अगर उसके पास नेकी नहीं होंगी, कोई नेक अमल नहीं होंगे उन लोगों को देने के लिए जिसके ऊपर उन्होंने जुल्म किया, किसी को नाजायज कत्ल किया, किसी को मारा, किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाई, अगर उस शख्स को उन लोगों को देने के लिए अगर उसके ऊपर नेक अमल नहीं होंगे, कोई नेकियां नहीं होंगी, तो वो सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोजा क़यामत के दिन कहेगा, ऐ अल्लाह मेरा कर्ज, मेरा कर्ज, मेरा कर्ज, ऐ अल्लाह उसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, ऐ अल्लाह उसने मेरा माल नाजायज तौर पर हक नाजायज तौर पर छीन कर खाया था, ऐ अल्लाह उसने मेरा खून बहाया था, ऐ अल्लाह उसने मुझे गाली गलौज दिया था, अपने हाथों से मुझे मारा था, ऐ अल्लाह मैं उससे पा रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरा कर्ज, ऐ अल्लाह मेरा मुआवजा। मेरे भाई वो सारी लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने चीख कर कहेगी कि अल्लाह मेरा कर्ज, मेरा कर्ज। जब उस इंसान के पास उन लोगों को देने के लिए कोई नेकियां नहीं होगी, तो उन सारी लोगों की बुराइयों को लाकर उस इंसान के ऊपर डाल दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुम्मा तुरिहा फिन्नार, उसको फिर दोज़ख के अंदर डाल दिया जाएगा, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, जुल्म बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन इसके बावजूद आज हिंदुस्तान के अंदर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है। और एक बात मैं बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा, आखिरी चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों एक दूसरे को हकीर ना जानो, एक दूसरे के तहकीर ना करो, क्योंकि इंसान को हकीर जानने की वजह से दिल में बहुत सारे खराबियां और बुराइयां पैदा हो जाती हैं। तहकीर जानने की वजह से जिस इंसान के दिल में किसी इंसान के खिलाफ उल्फत और मोहब्बत होगा, यकीनन वो इंसान उसके बारे में कोई बुरा भला नहीं करेगा, उसकी चुगली नहीं करेगा, उसके खिलाफ गीबतें नहीं करेंगे। लेकिन अगर दिल में उल्फत और मोहब्बत अगर किसी इंसान के लिए ना हो, तो फिर वो इंसान किसी इंसान के खिलाफ जो चाहता है वो करता है, उसकी गीबतें करता है, उसको तहकीर से जानता है, उसको हकीर समझता है। और हकीर के नताइज में जो सबसे खतरनाक गुनाह पैदा होता है दिल के अंदर, वो है तकब्बुर। किसी इंसान को हकीर जानने की वजह से दिल में तकब्बुर पैदा हो जाता है, और ये तकब्बुर सबसे पहले इब्लीस ने किया था। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कि इब्लीस ने अपने आप को बड़ा जाना, इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर की और अपने आप को बहुत बड़ा जाना। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यदखुलुल जन्ना, कि तकब्बुर करने वाला इंसान जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा। मेरे भाइयों, दिल के अंदर अगर तकब्बुर है, दिल के अंदर अगर तकब्बुर है, तो इंसान की जो नेक अमल है वो खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान की तबाही और बर्बादी के लिए यही काफी है कि वो किसी मुसलमान को हकीर जाने, किसी मुसलमान से तकब्बुर करे और उसको कम तर समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। 3 मरतबा इशारा किया कि तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। पता ये चला कि दिल के अंदर तक़वा है। अगर दिल के अंदर तक़वा नहीं है तो इंसान दीन के ऊपर अमल करने के बजाय दीन के खिलाफ तरह तरह की बातें करना शुरू कर देता है, बेहुदा बातें करना शुरू कर देता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में फरमाया, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम दमो हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्जुहु, कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का माल को छीनना, उसका खून बहाना, उसकी बेइज्जती करना, यह हराम है। मेरे भाइयों, इस हदीस के आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
کہ کسی انسان کو قتل کرنا حرام ہے, اس کی بے عزتی کرنا حرام ہے, ناجائز طور پر اس کے مال کو بٹورنا حرام ہے میرے بھائی. اور یہ انسان کی جو 3 چیزیں ہیں بہت ہی اہمیت کا حامل ہیں کہ اس کی بے عزتی کرنا, اس کو ناجائز قتل کرنا اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا. یہ انسان کی بہت ہی 3 چیز امپورٹنٹ ہے, اہمیت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں الفت و محبت کو پیدا کر دے اور نفرت, بغض اور حسد, کینہ کو دور کر دے. اے اللہ جو اس دنیا میں مریض ہے, بیماری میں مبتلا ہے, ان کی بیماریوں میں شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو انسان اس دنیا سے چلے گئے ہیں قبر کے اندر ان کو آرام و راحت اور سکون عطا فرما اور آخرت کے دن جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما. اے اللہ تو ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر, توحید پر زندہ رکھ, اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.